Hello students, in this video we will continue further with amines. Okay, in the previous video we had looked at classification of amines. आप amines को 1 degree, 2 degree and 3 degree में किस तरह से classify करते हो. उसके बाद जो है हम लोगों ने ये भी देखा था कि how to do the naming of amines. Now in this video we will start off with methods of preparation. Now the first method of preparation is basically called as reduction of nitroalkanes. Reduction of nitroalkanes. Now when I say nitroalkanes, matlab it is RNO2. When alkyl group is attached to NO2, इसको हम लोग nitro group कहता है. So when alkyl group is attached to nitro group, it is called as nitroalkanes. And in nitroalkanes को जब आप reduce करते हो तो आपको मिलता है amines. So the reaction is this RNO2. What you need is reducing agent. Reducing agent क्या करेगा? ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा. So what you need is a reducing agent. And once this supplies hydrogen, RNO2 will get converted into RNH2 plus H2O. This is what you would get. Okay. Now the question is कौन से reducing agents? ये मैं repeat कर रहा हूँ. This is not a balancing reaction. Balanced reaction नहीं है. अच्छा. अब कौन से reducing agents हम लोग use कर सकते हैं? So there are three, four reducing agents that you can use. You can directly use hydrogen plus palladium catalyst or platinum catalyst. Second reducing agent that you can use is tin plus HCl. Third reducing agent that you can use is Fe plus HCl. Fourth reducing agent that you can use is LiAlH4. So ये सारे जो reducing agents है, ये सारे reducing agents ये nitroalkanes को ये amines में convert करते हैं 1 degree amines. ठीक है. Now इनमें से भी जो best reducing agent होता है वो best नहीं, I'll say there is an advantage of using this. इसका एक अपना अलग advantage होता है. Now what is the advantage of this reducing agent? Fe with HCl forms FeCl2. Okay. And आपको हाइड्रोजन मिलता है एंड हाइड्रोजन फिर इसके साथ रिएक्ट करता है. अब इस FeCl2 में आप वाटर ऐड करोगे तो वापस ये आपको it will again give you HCl. Okay. So basically FeCl2 will again give you HCl and इस HCl को वापस आप यूज कर सकते हो. So the point is this that if you are using this reagent आपको बहुत सारे HCl की जरूरत ही नहीं है. थोड़ा सा HCl इनफ है क्योंकि आप जैसे ही HCl यूज करोगे तो FeCl2 बन जाएगा और FeCl2 को हाइड्रोलाइज करने के बाद तुरंत आपको वापस HCl मिल जाएगा which you can again use. So the advantage of this reaction is only small amount of HCl is required. Only small amount of HCl is required. ठीक है. So small amount of HCl is basically enough to carry out the reaction. आपको बहुत ज्यादा HCl की जरूरत भी नहीं है. Okay, fine. Now let's take an example. So let's start off with, let's say you have nitroethane. So CH3 CH2 NO2. Okay, let's say you use SN plus HCl. When you use SN plus HCl, what you are going to get is CH3 CH2 NO2 को बस आपको NH2 में कन्वर्ट कर देना है. This is ethane amine. Okay, this is nitroethane. It's a very very simple reaction. आप इनमें से कोई भी reagent यूज करो, नाइट्रो ग्रुप जो होता है, ये जो आपका NO2 ग्रुप होता है, दिस NO2 ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. हम और एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से यू हैव नाइट्रोबेंजीन. दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन में आप इनमें से कोई भी रिएजेंट ऐड करो. लेट्स से यू ऐड हाइड्रोजन in the presence of catalyst, NO2 will get converted into NH2.
नाउ NH2 ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, क्या कहा जाता है इसको, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। हर एक रिएक्शन में NO2 ग्रुप इज रेड्यूस टू NH2 एंड ये रिडक्शन कैरी आउट करने के लिए इनमें से आप कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। इज दिस फाइन? ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज ammonolysis of alkyl halides. Okay, now ammonolysis of alkyl halides. alkyl halides are RX, इनको alkyl halide कहा जाता है। इसमें आप NH3 ऐड करते हो। NH3 ऐड करने पे क्या होता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है, तो बिकॉज नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है, सी हमें ये पता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, सो व्हाट इट कैन डू इज इट कैन गो एंड अटैक दिस अल्काइल ग्रुप, एंड जैसे ही अल्काइल ग्रुप को अटैक करता है X बाहर निकल जाता है, यहां से H बाहर निकलता है, सो HX कम्स आउट, लेट मी राइट इट ओवर हियर, HX जो है दैट HX कम्स आउट एंड व्हाट यू गेट इज RNH2। ओके, नाउ HX इज नथिंग बट एसिड, सो बेसिकली एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इज दिस फाइन? एंड यहां पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है। Now the problem with this reaction is, I'll tell you what is the problem with this reaction. कंटेनर के अंदर you have RX, you have NH3 and first step के बाद you have RNH2. Okay. Now जैसे NH3 के पास लोन पेयर था और वो इसको अटैक कर रहा था, वैसे ही RNH2 में भी क्या है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, RNH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप तो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ओवर हियर। जस्ट यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे अमोनिया इसको अटैक कर रहा है, देयर इज अ चांस कि ये भी इसको अटैक कर सकता है, तो अगर जो RNH2 RX को अटैक करेगा तो क्या होगा, सो स्टेप 2 में, दिस इज योर स्टेप 1, ओके, स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कि RX मॉलिक्यूल जो है, ये RNH2 अब इसको अटैक कर सकता है, एंड ये X बाहर निकलेगा, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज अगेन माइनस HX, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सो आई विल गेट R N R एंड H और 2 डिग्री अमाइन। सो आइडियली व्हाट यू वांटेड वाज, आप चाहते थे कि 1 डिग्री अमाइन ही बने, but because your 1 degree amine can also behave like a nucleophile, this can behave like nucleophile, and because this can behave like a nucleophile, ये जाके वापस RX को अटैक कर सकता है, जैसे सेकेंड स्टेप में हो रहा है। सी RX को दोनों अटैक कर सकते हैं, मतलब द थिंग इज कि ये भी अटैक कर सकता है, अगर जो ये अटैक करेगा तो ये वापस ये रिएक्शन होगा एंड आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, बट अगर जो ये अटैक करता है RX को, तो व्हाट यू विल गेट इज अ 2 डिग्री अमाइन। ओके, नाउ 2 डिग्री अमाइन के अंदर भी नाइट्रोजन पे यू हैव अ लोन पेयर, एंड ये जो दोनों R ग्रुप्स है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अब क्या होगा, व्हेन वी कम टू स्टेप 3, व्हाट विल हैपन इन स्टेप 3 इज दिस कंपाउंड, ये जो 2 डिग्री अमाइन है, ये भी इसको वापस अटैक कर सकता है, बिकॉज इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना कंटेनर में,
तो आर एक्स प्लस आर एन आर एच, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है दिस कैन कम एंड दिस कैन अटैक दिस आर ग्रुप, एंड ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स देके बाहर निकल जाएगा, यहां से ये एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. सो HX will come out and what you will get is minus HX, and what you will now get is R N R R. Okay, so this is a 3 degree amine. So यहां से आपको 3 डिग्री अमाइन भी मिल सकता है. ओके, नाउ ये 3 डिग्री अमाइन के पास भी यहाँ पे नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, एंड नाउ देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, 1 2 3. नाउ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये भी इस मॉलिक्यूल को, RX मॉलिक्यूल को अटैक कर सकता है. सो स्टेप 4 में क्या होगा, व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेप 4, ओके, R N R R plus RX, okay, this will go and attack this. ये हाइड्रोजन will take 2 electrons and come out. अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, इस पे नाइट्रोजन पे, तो HX बाहर नहीं आ सकता. तो इस केस में what will happen is nitrogen will get attached to 4 alkyl groups, 3 4. यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है तो नाइट्रोजन पे ये प्लस चार्ज होगा. ओके, एंड हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स देके बाहर निकल रहा है तो दिस इज X माइनस. ये आपका आयोनिक कंपाउंड हुआ ना, दिस इज योर कैटायन, दिस इज योर एनायन, तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड. टेट्रा अल्काइल क्योंकि 4 अल्काइल ग्रुप्स है, नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अमोनियम कहा जाता है. ये NH4 जैसा ही है. अमोनियम जो होता है वो अमोनियम होता है NH4 प्लस 1 2 3 4 H, ये होता है आपका अमोनियम आयन. तो ये अमोनियम जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस हाइड्रोजन के जगह पे यू हैव R ग्रुप्स, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड. I hope you have understood this. Okay, मैं ये कहूंगा कि प्लीज रिवाइंड दिस पार्ट अगेन, गो थ्रू दिस अगेन. ओके, सो यहाँ पे व्हाट वी रियलाइज, हमें ये रियलाइज होता है कि जब आप ये मेथड यूज करते हो तो आपको बस एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है. यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, यू गेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ अमोनियम सॉल्ट. दिस इज अमोनियम salt. So because you are getting mixture of products over here, ठीक है, this is not a very good method to prepare 1 degree amine. So let me write, not a good method to prepare 1 degree amine, because not a good method to prepare 1 degree amine because mixture of amines is obtained or mixture of products is obtained. Okay, now the question is, मान लो आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाए, ये आगे के स्टेप्स क्यों हो रहा है, ये सेकेंड स्टेप क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन जाके इसको RX को अटैक कर रहा है, इसलिए स्टेप 2 हो रही है. स्टेप 3 क्यों हो रही है, ये 2 डिग्री अमाइन जो है ये जाके RX को अटैक कर रहा है, तो इसलिए थर्ड स्टेप हो रही है. बट इफ यू वांट कि रिएक्शन शुड स्टॉप एट ओनली फर्स्ट स्टेप, या आप ये चाहते हो कि ये जो 1 डिग्री अमाइन है यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो, तो ये कब पॉसिबल होगा, 1 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट तब होगा जब बस अमोनिया अटैक करेगा. सो जब अमोनिया NH3 इसको अटैक करता है तब जाके आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है. सो आई कैन से टू ऑब्टेन 1 डिग्री अमाइन एज मेजर प्रोडक्ट, okay, I can write, to obtain this as your major product,
NH3 should attack RX most of the time. Now क्योंकि जब NH3 इसको अटैक करता है तब जाके आपको बस 1 डिग्री अमाइन ही मिलता है. अब ये जब इनको RX को अटैक करते हैं तब आपको 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस मिलता है. So now I can say this, that to get 1 degree amine as your major product, ammonia should attack this most of the time. And ammonia इसको most of the time तब attack करेगा when ammonia is present in large quantity. So when ammonia is present in large quantity. So now I can write, okay. And this is a very very important point. Okay, ये note down करना, ये reaction भी बहुत important है कि to obtain 1 degree amine as the major product, ammonia should be present in large quantity. Should be present in large quantity. That is, it should be present in excess. So अब मैं ये रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूँ. Let's say you have alkyl halide plus if you use NH3 in excess. तो अगर जो NH3 एक्सेस में, तो NH3 हमेशा इसको अटैक करता जाएगा. सो जैसे ही NH3 इसको अटैक करेगा, what will happen is HX will come out and you will get RNH2. That is 1 degree amine as the major product. ठीक है? I hope you have understood this. Okay. Now let's take both examples जहाँ पे अमोनिया आप एक्सेस में यूज नहीं करते तो क्या होगा, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज जहाँ पे आप अमोनिया एक्सेस में यूज करोगे तो क्या होगा. ओके, सो एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव CH3Br. ओके, ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है. आप नॉर्मली NH3 यूज करो. आप नॉर्मली NH3 यूज करोगे तो HBr बाहर आ जाएगा and you will get CH3NH2. Okay. Now step 2 में क्या होगा? This is your methane amine. Okay. Now step 2 में this is your step 1. Now step 2 में क्या होगा? ये जो मीथेन अमाइन है ये वापस इस मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, CH3Br. तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इट विल अगेन गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम एंड ब्रोमीन विल कम आउट. ओके, सो ये HBr बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, एंड यू विल गेट CH3N CH3H. दिस इज अ 2 डिग्री अमाइन. ओके, डाइमिथाइल अमाइन, ये इसका कॉमन नेम है. अब ये 2 डिग्री अमाइन हमें पता ही है, और एक ये अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल को अटैक कर सकता है. सो CH3Br, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम, ब्रोमीन विल कम आउट, सो माइनस HBr. सो नाउ यू विल गेट CH3N CH3, okay, CH3. This is a 3 degree amine, trimethyl amine, which is a 3 degree amine. And last step में ये जो 3 degree amine है, this will go and attack one more molecule of CH3Br. So ये it will go and attack दिस, वापस ये Br बाहर आ जाएगा. HBr चांस ही नहीं है आने के लिए क्योंकि नाइट्रोजन पे अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. तो फोर्थ स्टेप में जाके आपको सॉल्ट मिलता है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या मिलेगा? नाइट्रोजन विल बी अटैच टू 4 अल्काइल ग्रुप्स, तो NCH3 4, इस पे प्लस चार्ज होगा
नाइट्रोजन क्योंकि अपने ही इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसमें प्लस चार्ज होगा, दिस इज Br माइनस. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज टेट्रा मिथाइल अमोनियम bromide. Okay, so this is what you would get. You would get the mixture of 4 compounds: 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine and this compound. But वही अगर जो आप NH3 excess में यूज करोगे, let me write it over here. If you start off with CH3Br and if you use NH3 in excess, then what would happen is आपको मिलेगा CH3NH2. ये HBr बाहर आ जाएगा. This will be your major product. So बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में बनेंगे तो आप उनको इग्नोर कर दो. This would be your major product. ठीक है. So this is the difference when you don't use ammonia in excess and if you use ammonia in excess, this is the reaction that you would get. Okay, I hope इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको. Okay, you can see that this is also similar to your SN2 mechanism जहां पे ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है. Okay, so kind of SN2 mechanism. Fine. Okay. अच्छा, यहां पे ये जो अमोनोलाइसिस है ये रिएक्शन खत्म होता है. You have to understand one thing over here, okay? जैसे ये रिएक्शन है, okay? ना यहां पे HBr जो है, we know that HBr is an acid. एंड ये वाला जो कंपाउंड है, बिकॉज ये अमोनिया का डेरिवेटिव है एंड अमोनिया अपने आप में बेस होता है. यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो दिस इज अ बेस. सो आपको डायरेक्टली ना, यू विल नॉट गेट दिस डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा. क्या होगा कि ये जो है ये इस एसिड के साथ रिएक्ट करके दिस विल फॉर्म दिस CH3NH2 will react with HBr to form H plus यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो यू विल गेट CH3NH3 प्लस Br माइनस. ओके, सो आपको इस तरह से सॉल्ट मिलेगा. रिपीट इट. ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कंपाउंड अपने आप में बेस की तरह बिहेव करेगा एंड साथ में ये एसिड भी एलिमिनेट हो रहा है. तो दिस एसिड विल बिहेव विद दिस, रिएक्ट विद दिस बेस टू फॉर्म दिस सॉल्ट. ओके, ना इस सॉल्ट से आपको वापस ये चाहिए ना, मतलब आपको दिस इज व्हाट यू वांट, आपको ये नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट यू वांट. सो व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो. आप जब इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो व्हाट यू गेट इज CH3NH2 प्लस H2O एंड प्लस NaBr. ओके, एंड आपको ये जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाता है. बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, दैट इज फाइन. द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर इज व्हेन alkyl halide reacts with excess of ammonia, you get 1 degree amine as your major product. ठीक है, just that ये जो अमाइंस होते दे आर बेसिक इन नेचर एंड इस रिएक्शन में एसिड भी एलिमिनेट होता है. तो एसिड बेस रिएक्शन होके ये जो कंपाउंड है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. अब आपको वापस ये कंपाउंड चाहिए तो इस कंपाउंड के अंदर आप NaOH ऐड करते हो. जब NaOH ऐड करते हो तो बेसिकली क्या होता है, you get back your CH3NH2, Na combines with Br and यहां से एक H plus एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करके it gives you H2. फाइन, ठीक है. Now we will see, we'll look at a new method. See, the bad part about this method is कि आप excess में अमोनिया यूज करोगे तो ही आपको ये 1 डिग्री अमाइन जो है ये एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, बट स्टिल ये रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होता. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज, अगर जो आप अमोनिया एक्सेस में यूज नहीं करते तो क्या होगा, या अमोनिया आप एक्सेस में भी यूज करते हो तो भी क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड ये सॉल्ट कुछ तो क्वांटिटी में बनेगा, राइट. सो यू विल स्टिल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स.
So to obtain a single product, there is another method that we use. We'll look at that method now. Okay. Okay. This method is called as Gabriel-Thalamide synthesis. Synthesis. अब ये जो थैलामाइड है, इट इज समथिंग दैट यू हैड सीन इन प्रीवियस चैप्टर. हम लोगों ने ये देखा था. थैलामाइड ये कंपाउंड होता है. दिस इज C double bond O. This will be N C double bond O N H. This is thalidomide. Okay. Now what happens is, ये reaction होता कैसे? Let's look at it now. So first step में आप अल्कोहलिक KOH ऐड करते हो. यहाँ पे अब जब अल्कोहलिक KOH ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ये जो H प्लस है, मतलब ये हाइड्रोजन, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस विच रिएक्ट्स विथ OH माइनस. सो H2O कम्स आउट एंड दिस इज व्हाट यू गेट. C double bond O, C double bond O, N minus K plus. So this behaves like an acid. So ये जो हाइड्रोजन होता है, दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन, एंड ये तो अपने आप में बेस है. तो एसिड बेस रिएक्शन होके यू गेट अ सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. सॉल्ट ऑफ थैलामाइड. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो पोटेशियम सॉल्ट होता है, इसमें अगर जो आप ये पार्ट देखोगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन हैज गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ, एंड इफ इट हैज गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दिस कैन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, राइट? अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. द रीजन इज बिकॉज नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. नाउ जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, व्हाट हैपेंस इज, नाउ नेक्स्ट स्टेप में यू ब्रिंग इन RX. वापस आप अल्काइल हलाइड लेके आते हो. हाँ, यहां पे हमें पता है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ये साइड पे शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज. तो क्या होगा कि दिस विल गो एंड अटैक R, एंड जैसे ये R को अटैक करेगा, दिस इज व्हाट यू वुड गेट. C double bond O, C double bond O, N R. Nitrogen will get attached to R and K will react with X to form KX plus KX. Okay. Now once you have this, इसके बाद अब last step में आप क्या करोगे? You will just do alkaline hydrolysis of this. Hydrolysis in basic medium. So what we will get is RNH2. RNH2. This part comes out. Okay. So I repeat it. First step में क्या होता है? थैलामाइड जो होता है, इसमें ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है. आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म H2O. ये पोटेशियम जो है K प्लस विल गेट अटैच्ड ओवर हियर. इस तरह से ये सॉल्ट बनेगा. नाउ इफ यू फोकस ऑन दिस पार्ट, हाइड्रोजन कम्स आउट एज H प्लस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नाइट्रोजन पे आ रहा है. सो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. नाउ दिस बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये सीधा इसको जाके अटैक करता है. तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म होता है. नाउ बिकॉज दिस इज SN2 मैकेनिज्म, इट विल बी बेटर इफ ये R ग्रुप जो होगा ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हलाइड होगा. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, SN2 is favored when your substrate is a 1 degree alkyl halide. So ये 1 डिग्री होना चाहिए. ये जैसे ही इसको अटैक करेगा, ये X it comes out. Okay. So this is what you get, and then you do hydrolysis of this. This will get converted into RNH2.
So if you are wondering इसके साथ क्या होता है, तो this gets converted into C double bond O, C double bond O, O minus Na plus, O minus Na plus. This is what happens. But ठीक है, this is our major product, 1 degree amine. Okay. अब ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होता. दिस रिएक्शन बेसिकली स्टॉप्स ओवर हियर. ये 1 डिग्री अमाइन पे ये रिएक्शन रुक जाता है. नाउ दिस रिएक्शन इज बेसिकली आई कैन से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको अटैक करता है एंड एक्स बाहर निकल जाता है. तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्स को रिप्लेस कर देता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक substitution. This is an example of a nucleophilic substitution reaction. ठीक है, that too SN2. The bad part about this reaction is you cannot, ये जो compound है it cannot be this. अल्काइल हैलाइड ही आप यहां पे यूज कर सकते. यू कैनॉट यूज, सो वी कैनॉट यूज अराइल हैलाइड्स. द रीजन इज वेरी सिंपल. हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ये जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. And because this is a very strong bond, cannot be easily broken. Cannot be easily broken. So that is why आप ये कंपाउंड नहीं बना सकते. You cannot make this compound. क्योंकि ये बनाने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा. एंड इसको यूज करके हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता. सो दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. सो आई राइट एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड. प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड. This method. I'll just write down an example. So thazamide plus ethyl bromide, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हो CH3 CH2 NH2. आपको बस Br हटा के NH2 लगाना है. ठीक है, थैंक यू.